الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا وہ راتیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں گزارتے، اور ساری رات عبادت کرنے کے بعد بھی سویرے وہ یہ نہیں کہتے میں عبادت گزار ہوں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، سویرے اٹھ کے کہتے ہیں اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا، بے شک تیرا عذاب گلے میں اڑ جانے والا ہے، غراما، اے اللہ تیرا عذاب گلے میں اڑ جانے والا ہے، اے اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما۔ یعنی وہ رات ساری عبادت کر کے بھی صبح اپنے رب سے معافی کا سوال ہی کرتے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا، اسے جب بھی پڑھو گے تمہیں نئی تازگی عطا کرے گا۔ آیت نمبر 45 سے اللہ تعالیٰ نے سائے کے پھیلاؤ اور سمٹاؤ اور نیند کو باعث راحت اور دن کو ذریعہ معاش بنانے کو اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ فرمایا یہ جو تمہیں نیند آتی ہے یہ بھی میری نشانیوں میں سے نشانی ہے، یہ بھی میری نشانیوں میں سے، یعنی آپ ذرا سمجھیں اس بات کو، نیند بھی اللہ کی نشانیوں میں سے، یعنی وہ غلبہ کر لیتی ہے آدمی پہ۔ زندہ انسان ہے، کھلی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور سننے والے کان سننا چھوڑ دیتے ہیں، اور انسان اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا بالکل یکدم لیٹ جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ بھی تو دیکھو نا، یہ بھی تمہارے رب کی نشانی ہے کہ تمہارے اوپر اس نے نیند کو تمہارے لیے سکون کا سبب بنایا۔ اللہ تعالیٰ راحت والی نیند عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ غفلت والی نیند سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 48 سے بارش کے نظام، آسمان سے پاک پانی کے نزول، اس کے ذریعے بنجر زمین کو زرخیز بنانے، سمندروں میں میٹھے اور نمکین پانی کے الگ الگ جاری ہونے اور دیگر انعامات کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ پانی جب آسمان سے اترتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے کہ نمکین ہوتا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے نا کہ جب وہ دریاؤں سمندروں میں جاتا ہے تو نمکین الگ ملتا ہے، میٹھا الگ ملتا ہے۔ آیت نمبر 54 میں بتایا کہ انسان کا جوہر تخلیق پانی ہے، بنیادی طور پر یہ بھی پانی سے پیدا کیا گیا، پھر اس کے ذریعے نسب اور سسرال کے رشتے قائم کیے گئے، یعنی سسرال کے رشتے یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر ارشاد فرمایا۔ سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں آسمانوں میں برج بنانے، سورج اور چاند کی روشنی اور نظام لیل و نہار کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل کے طور پہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے اعلیٰ صفات کا بیان ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل ان سے الجھنا چاہیں تو وہ الجھتے نہیں، بلکہ وہ ایک بات ذرا میرا دل ہے یہاں کہہ دوں، ایک آدمی نے نا الف با تا سا سے لے کر پورا قرآن مجید پڑھا ہے، پر اس کے بعد اس نے اس کی کچھ نہ کچھ تجوید بھی پڑھی، پھر کچھ نہ کچھ ترجمہ بھی پڑھا، سمجھ لیں کہ 30 پاروں کا خالی ترجمہ ایک بندہ پڑھ گیا ہے، اور ایک شخص اس کے سامنے آ کے بیٹھا ہے جسے سورۃ اخلاص کا ترجمہ بھی ٹھیک نہیں آتا۔ اب وہ جو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ دلیل کیسے دے گا، اس کو سمجھائے گا کیسے؟ اس لیے کہ اس کی سوچ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے کہ ان پڑھ حق بات کہنے انسان والا، کے سامنے کتاب اور اینٹ برابر ہوتی ہے، غفاری سے بڑا کوئی نہیں، اس لیے کہ نہ وہ کتاب کو پڑھ سکتا ہے اور نہ وہ اینٹ کو، تو اس کے لیے تو برابر ہے۔ فرمایا کہ ان پڑھ بندے کو مسئلہ سمجھانا ابھی اپنے اور کسی بیوقوف کو بات سمجھانا اور پھر اس سے اگلی بات، کہنے لگے یا رسول اللہ، کچھ لوگوں نے کچھ چیزوں کا ذائقہ چکھا ہوتا ہے، پرواہ نہیں کرنی،
उनको इत्मीनान कल भी नसीब हुआ होता है। कुछ लोग बिल्कुल उससे नाआशना की हो। तौहीद का ऐलान कर। अब वो जो नाआशना बंदा है ना, वो इन बहस करता है, काफिरों वो के कहता है, बीच किस तरह खड़े होके मैं कहूंगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्ला। इनके बीच खड़े होके मैं माँ बाप से कहूंगा प्यार नहीं करता तो माँ बाप मैं की कहूंगा मोहब्बत की चाशनी की उसे जो खबर करना है। नहीं होती, और जब तक उसके बच्चे नहीं होते कुफ्र का कसरत मोहब्बत काफिरों फिदरी की और हालात माँ ये की हैं कि ममता, मुसलमान घर इन में दोनों छुप चीजों कर की उसे खबर है बज़ाहिर दीन नहीं सीख होती। सिखा रहे हैं। तो इसलिए जनाब बुजुर्ग गिफारी अल्लाह मैदान के में बंदों आ ने फिर इन लोगों से बहस नहीं की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हक के जो रस्ते कहते हैं कि मैं उस जख्मों का चीज भी को मसला समझूं है। जिसको वो समझ सकते नहीं, कभी जख्म ठीक होने इसलिए कि एक शख्स ने 8 साल लगाए, 10 साल लगाए। जख्मों में एक मजा कुरान मजीद की होता है। तफसीर से पहले ये बहुत जो सारी जख्म इमदादी हक के कुतुब रास्ते हम पे बच्चों को लगते हैं ना, पढ़ाते हक हैं, के रास्ते पे बहुत सारी चीजें इन समझने जख्मों की में लज्जत है, तो जो हालात जायका है। बहस करते हैं, ये जो बहस ना ताने करें। हक की और राह जब में आपको आपको पता मिलते चल हैं ना, गया सामने वाला ये जाहिल आपकी है, तो फिर नींद अगर जाया आपने नहीं बहस करती, की तो ये इसका आपकी मतलब है नींद कि को आप बेवकूफ हैं, आपने तसल्ली ये और गलत सुकून काम की किया। नींद आती। तो अल्लाह के हमने बंदे जितने कभी ताने भी सहे जाहिल जात आदमी के से लिए बहस सहे, कारोबार के लिए नहीं सहे। करते, और आगे हक के रास्ते में जो ताने लगते हैं उनका तो मजा ही फिर बड़ा है। इससे आगे जफा जो इश्क सूरत में शुअरा होती है शुरू वो होती जफा ही है। नहीं, इस इकबाल सूरत कहते की आयत नंबर जफा जो 224 इश्क में में होती है शुअरा वो का जिक्र है, इसलिए जफा ही इसका नहीं। नाम शुअरा अगर रखा गया। सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। आयत नंबर बेजायका 7 है अल्लाह मोहब्बत, ताला ने अगर उसमें जमीन से सितम नहीं है। मुख्तलिफ आप किस्म सीधे के सीधे जा रहे पौधे हैं, के उगाने को ड्राइवर अपनी होने का कुदरत पता की कैसे निशानी चलेगा? ये तो 4 खड्डे बताया। आएंगे तो पता चलेगा इसी गाड़ी सूरत में चलानी एक बार आती है फिर कि नहीं। ये हजरत तो मेरे मूसा भाई कहीं अलैहिस्सलाम रश के मिलेगा तो फिरौन के अंदाजा पास होगा जाके कि आपको दावत रास्ते हक निकलना देने का आता है कि जिक्र नहीं। फरमाया। हजरत अबू ज़र ये गिफारी कई दफा सुन चुके हैं ना, बीच कुरान खड़े मजीद ने फिर होकर बयान काफिरों के कहने लगे फिर ला बयान इलाहा फरमाया। ये इल्लल्लाह, तकरार ला फायदा मंद इलाहा होती है। अल इल्म बित तकरार। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे जो वही सरब किया नाम जिन्होंने के करना साथ था, वो उन्होंने कहते पकड़ के हैं मारा। कि तकरार बड़ा से शदीद इल्म मारा। आता है। हजरत अब्बास बार बार रज़ी किसी अल्लाह बात के ताला बयान जनाब करने से वो बात नबी रहमत सल्लल्लाहु याद हो अलैहि वसल्लम जाती। के एक साहब चचा मुझे कहने लगे अभी कि उन्होंने फलाने अपने अल्लामा कलमे साहब का की ऐलान नहीं तकरीरें किया मुझे था। याद हो गई हैं इस सारी। तरह मैं क्या ज़दो चल को दो करोगे तरह तो अपनी सुना तिजारत तबाह कर बैठोगे, शर्म करो। उन्होंने लेकिन जनाब सुना अबू ज़र को सकते छोड़ दिया, कहा कल ना तकरार आना फायदेमंद और मारेंगे। होती है। अगर काम आज की के बाद चीज बात की ना तकरार करना। हो पर तो उसको मैंने कहा बार बार जख्मों का भी समझना मजा चाहिए। होता है। तो इनकी भी फिरौन लज्जत होती है। क्या की तरफ करें, हजरत इस मूसा रस्ते का भी बड़ा अलैहिस्सलाम जायका के है। भेजने का यहाँ जख्म अल्लाह ने पे जिक्र जख्म फरमाया। खा के बशरी जी तकादे के तहत मूसा और अलैहिस्सलाम के खून खदशात जिगर का जिक्र के है। घूंट फिरौन पी की तरफ से मूसा और की फिर तरबियत आह के न कर एहसान लबों को जताने सी, का भी जिक्र है। पीछे आप पढ़ रहे फिर हैं ना आह कि न हजरत कर मूसा लबों उसी के को घर सी, में पले क्यों? थे। ये तो वो इश्क कहेगा है कि कोई मैंने दिल पाला है लगी तो आप मुझे तबलीग करने आ गए। हजरत फिरौन ला ने इलाहा दावत इल्लल्लाह, तौहीद के जवाब ला में इलाहा कहा इल्लल्लाह। उन्होंने फिर मारना शुरू किया, कि जोर जोर से रब्बुल मार रहे आलमीन कौन हैं। है? और जनाब उन्होंने अबू ज़र फरमाया गिफारी वो कह रहे हैं, ला आसमानों इलाहा और जमीनों मार मशारिक और खाई राह मगारिब खुदा और में पर तुम्हारा हक तुम्हारे बावजूद हक होता तरफ है। इसका इस अपना मकाम जायका है, पर सच्चाई भी की बार एक फिर लज्जत है। जादूगरों के मुकाबले और में मेरे मूसा मिल्लत के अलैहिस्सलाम नौजवानों, के मोजज़ात खबरदार खास तौर पर वो जो आपका अज़दा बन गया था ना, के सहारे जिंदगियां और फिर वो बेकार हो जाती था। उसके आने का ये फिर देखो एक दफा सच्चे अल्लाह ने लोग। जिक्र फरमाया। फिर उन्होंने फिर जादूगरों मारा। के ईमान लाने और फिर फिरौन आए, की उन्होंने तरफ फिर से छुड़ाया। कैद नबी में करीम डालने, को पता हाथ चला ना, पांव को बार-बार मार मुखालिफ खाते हैं। सिमत में तो काटने और फरमाने लगे, सूली पर आसमान चढ़ाने के की नीचे धमकी और का भी जमीन जिक्र के है। ऊपर इससे ज्यादा फिर हक इस बात कहने का वाला बयान बंदा है कोई कि नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम जो बनी हक इसराइल कहता को है और लेकर मार गए। खाता है, हक सामने कहता है और समुंदर था, पीछे मार फिरौन खाता था। और इसके पैरोकारों का ताक़ुब भी था। अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी की ज़रब से समुंदर भी फट गया। बनी इसराइल के लिए रास्ता बना, वो सलामती के साथ समुंदर पार चले गए। फिरौन अपने लाओ लश्कर समेत समुंदर में गर्क हो गया। या मुफस्सिरीन ने एक और बात छेड़ी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम डंडा फेंकते हैं, वो अज़दा बन जाता है और सारे जो उनके बड़े बड़े शाम थे